See the illustration. It was a comprehensive illustration and so many parts. Yes, it was 37th illustration. First three parts we have already discussed. Three का थोड़ा सा recall करवाती हूँ. Whereby we just brought up our value of furniture to 120%. Yesterday we have discussed 100 वाली चीज को 120 पे क्या करना है, record करना है. See the fourth point. Before we proceed, we have to prepare its format. So this is fourth part I am doing. What he said, stock is undervalued by 10%. ये भी कल डिस्कस किया था भाई. Undervalued by 10% means 18,000 जो है वो 90% के पीछे है. I am repeating it. Fourth already we have discussed. So you have to gross it up. आप इसे 100 पे लेके आएंगे. जब मैं इसे 100 पे लेके आऊंगी तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20,000. But you are recording your stock at rupees 18,000. It means that has been undervalued with rupees 2,000. So what will be the consequence of it? What will be the result of it? 18,000 को डिडक्ट करिए 20,000 में से and you have to increase your stock with rupees 2,000. You are getting me? कल मैंने एक और क्राइटेरिया बताया था. This 18,000 is beyond 90. You can directly calculate the value by multiplying with 10. फिर डिफरेंस थोड़ा निकालना है, फिर सीधा 2,000 आना. ठीक है? Already the stock is undervalued. So you have to bring it at gross value. मतलब उसे उसकी कॉस्ट पे लेके आना है. So how I will be passing the entry? You are increasing the stock. Stock account debited to revaluation account. With how much amount? That is 2,000. Being stock already undervalued now recorded at cost. Come to next. Okay. Yes, now come to next. Stock is overvalued by 10%. Now it is reverse. Means 100 वाली चीज को आप 110 पे रिकॉर्ड करके बैठे हैं. चाहो तो आप 110 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो. चाहो तो आप 110 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिफरेंस आएगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. मैं दोनों तरह से निकाल के बताऊंगी, सेम आएगा हमारा. सी द वर्किंग नोट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. Yes, 22,000 is beyond 110. What I have to show? I have to show it at 100. Again, it comes to me 20,000. 22,000 की स्टॉक की वैल्यू आप शो कर रहे हैं. एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 20,000. So you will be decreasing your stock with 2,000. अगर ऐसे नहीं करना तो सेकेंड वे क्या है? 22,000 वैल्यू है, 110 के पीछे 10% ज्यादा है, ओवर वैल्यूड. आप 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर सीधा वैल्यू आएगी 2,000. अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंस से एंट्री पास करेंगे. अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग द अमाउंट. So now what we have to do? Already the stock is overvalued. Now what we have to do? We just have to decrease it. और जब कभी भी एसेट डिक्रीज करते हैं तो एसेट क्रेडिट होता है, कल डिस्कस किया है. Once again with rupees 2,000. जब एसेट को डिक्रीज करना है डेबिट करूंगे क्रेडिट. जब एसेट को डिक्रीज करना है डेबिट करूंगे क्रेडिट. एंट्री में क्रेडिट. और डेबिट किसको करूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को. सो व्हाट विल बी माय एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट. दैट विल बी 2,000. सो इससे पहले वाली एंट्री में क्या था? द स्टॉक वाज undervalued. We brought it by debiting it at the cost. Here the stock was overvalued. We brought it down by crediting the stock. ठीक है जी. So this was your fifth point. Now come to next. पढ़ो अगला. Sixth point पढ़ो.
सी कंप्यूटर की कितनी वैल्यू है उसमें, व्हाट ही इज आस्किंग अस टू डू, what he says, market value of the computer is 25,000, book value of the computer is 20,000. what it means, मार्केट में जब हमने उसके बारे में बेचने के बारे में सोचा या किसी से वैल्यू डलवाई तो वो 25,000 वैल्यू कर रहा है। बुक वैल्यू का मतलब मैं बैलेंस शीट में कितने में लिख रही हूँ, 20,000 में। तो बैठे बैठाए मेरे कंप्यूटर की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई। दिस इज व्हाट वी कॉल रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। सो आई विल बी डेबिटिंग कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट with rupees 5,000. Being the value of computer increased or inflated. Come to next. Yes, machinery is taken by Leena. Leena is one of our partner. Starting में हमने पढ़ा Leena और रोहित are two partners. नया पॉइंट है आपके लिए। Machinery is taken by Leena for rupees 80,000. उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू कितनी थी? 60,000। बैठे बैठाए 20,000 का फायदा फर्म को। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं रूल कौन सा अप्लाई करूंगी। Whenever any of the partner takes any of our asset, we just debit his capital. हम उससे कभी भी कैश में पैसा नहीं लेंगे, हम उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। मींस पार्टनर से कुछ भी लेना है तो उसकी कैपिटल में से एक्सट्रैक्ट करो। ये पूरी पार्टनरशिप का रूल है। पार्टनर से कुछ भी लेना है तो उसकी कैपिटल को डेबिट करो, पार्टनर को कुछ भी देना है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करो। So hereby Beena is taking our asset. और एक बात, अगर मैं मार्केट में मशीनरी को बेचती तो एंट्री क्या आती, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। एम आई राइट? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी होता। अब मैंने बीना को अपना डेटर बनाना, कैश डेबिट नहीं करना। बीना विल बिकम माय डेटर ऑफ द फर्म। सो आई विल बी डेबिटिंग बीना और पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट द रिसीवर। सो बीना इज टेकिंग आवर मशीनरी, एंट्री आएगी बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 80,000 में लेने के बारे में उसने कहा हमें। मशीनरी मेरी कितने की जा रही है, बोलो। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी, 60। मेरी तो एंट्री नहीं कंप्लीट हुई भाई। बैठे बैठाए 20,000 का मेरे को फायदा है, किसके ऊपर, एसेट के ऊपर। एसेट के जो फायदे नुकसान होते हैं वो रीवैल्यूएशन में जाते हैं। तो रीवैल्यूएशन में आई विल बी ट्रांसफरिंग द डिफरेंस। दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू। लॉजिक, बीना इज टेकिंग द एसेट, बीना इज टू बी डेबिटेड, व्हाट इज गोइंग आउट, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैठे बैठाए मेरे को एसेट के ऊपर क्या हुआ है, फायदा हुआ है। दैट 20,000 आई विल बी ट्रांसफरिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन योर बुक ही पास्ड टू सेपरेट एंट्रीज। ओके, उसने बीना की एंट्री नहीं पास करी। लीना टुक द मशीनरी, ओके लीना लिखिए, फिर उसने दो अलग अलग करी हैं। इट्स नॉट बीना, इट्स लीना, नेम ही चेंज किया बस। उसने दो सेपरेट एंट्री कर दी। पहले क्या करी, लीना टू मशीनरी विद रुपीज 60,000, फिर से लीना टू रीवैल्यूएशन विद रुपीज 20,000। आई जस्ट कंबाइंड इट, राइट। इसने पहले वैल्यू बढ़ाई है। लीना में टोटल 80 आना ना, लीना में हमने भी 80 डाला। दोनों तरह से ठीक है, उसका लॉजिक देख लो, मैं उसका बताती हूँ। उसने दो एंट्रीज क्यों करी पास, लेट मी टेल यू व्हाट ही डिड। उसने पहले मशीनरी की वैल्यू बढ़ाई। जब मशीनरी की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 20,000 से। फिर 60 से मशीनरी कितने की हो गई, 80 की, क्योंकि 20,000 वैल्यू बढ़ गई। फिर उसने करा लीना टू मशीनरी 80। रीवैल्यूएशन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना। रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे ही आएगा, लीनास कैपिटल कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड, बाय लीनास कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे भी तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है जब मशीन की वैल्यू बढ़ रही है। यू आर गेटिंग इट। आप चाहो तो एक एंट्री करो जो मैंने करवाई है, चाहो तो आप दो एंट्रीज करो। पहले मशीन की वैल्यू बढ़ाओ, फिर इस मशीन को लीना को ट्रांसफर करो। अगली एंट्री लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। दोनों एंट्रीज ठीक है भाई। अब मशीन कितने की हो गई, 80,000। So he is passing two separate entries. I passed a single entry with rule. ठीक है, मैंने रूल आपको बता दिया।
तो ये भी तो दोनों एंट्रीज में लीना को क्या कर रहा है, डेबिट ही तो कर रहा है। लीना को अपना क्या बना रहा है, डेटर। तो ही इज मेकिंग लीना डेटर। फर्स्टली ही इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, राइट। सो इन एनी वे यू कैन सॉल्व इट। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी डाउट टू एनीवन, यू कैन आस्क। रोहित मेरा एक और पार्टनर है, उसके बारे में सोचते हैं। कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे पहले। देखो जरा, रोहित ने 1/3 ऑफ द मशीनरी टेक ओवर करी है। लेट्स रीड फर्स्ट। हर पॉइंट पिछले पॉइंट से अलग है। He is putting forward so many different cases for revaluation of assets and reassessment of liabilities. 1/3 of the machinery is taken over by Rohit. कितने में, 30,000 में। ओके, ये 1/3 लेके गया 30 में, बाकी 2/3 बची, राइट। ध्यान से देखो, ये 1/3 लेके गया 30,000 में, 30,000 उसकी टेकन ओवर वैल्यू है। He is taking 1/3 मशीनरी for ₹30,000। ₹30,000 मेरे को इसकी बुक वैल्यू नहीं पता। आगे कहता है 2/3 जो है, 2/3 की बुक वैल्यू कितनी थी, 72,000। इसकी बुक वैल्यू हमें दे रखी है 72,000। ये कितने में लेके गया, 57,600 में ये मार्केट में इसकी वैल्यू पड़ी। रोहित इज टेकिंग ओवर ओनली 30,000। पहले इसकी वैल्यू निकालते, फुल वैल्यू निकालते। 2/3 इज बियॉन्ड 2/3। वैल्यू ऑफ मशीनरी आई विल कैलकुलेट, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। 1,08,000, ठीक है जी। 1,08,000 का 1/3 निकालो, बुक वैल्यू आएगी। क्योंकि मेरे को इसकी बुक वैल्यू चाहिए, फुल वैल्यू आ गई आपके पास। 1,08,000, इसका 1/3 निकालो, बोलो कितने पे जाएगा, 36 होगा, 36,000। इट मीन्स कि रोहित ने जो एसेट ली है उसकी वैल्यू कितनी थी, 36,000। 36,000 वाली मशीनरी रोहित कितने में लेके जा रहा है, 30,000 में। तो बैठे बैठाए हमें क्या है, नुकसान है। अब उस नुकसान को कैसे हम लोगों ने ट्रांसफर करना है, लेट्स सी। फर्स्टली रोहित इज टेकिंग द मशीनरी। अब देखना, मेरे वाला लॉजिक लगाया। रोहित इज टेकिंग द एसेट, उसे क्या करो, डेबिट। व्हाट इज गोइंग आउट, मशीनरी इज गोइंग आउट। कितने में लेके जा रहा है वो मशीनरी, 30,000। अब जो 36,000 की वैल्यू कितनी पड़ी, 30,000, 6,000 ये घाटा। 72,000 की वैल्यू कितनी बड़ी, 57,600। डिफरेंस निकालो इसका, कितना डिफरेंस आएगा, कैलकुलेट सिर्फ डिफरेंस। 70,000 minus 57,600, calculate the difference। 57,600, this will be 004, this is 9, 2, 12,400। तो बैठे बैठाए हमारे पास मशीन का जो लॉस है, that will come to us 6,000 पहली का और 12,400 दूसरी का। मेरे हिसाब से it comes to us 18,400। But in your book, how he has calculated, let's see. 30 plus 50. इसने सीधा वैल्यू कितना है, तो मैंने क्या किया, ओके मैंने 70 किया। निकालो वैल्यू फिर कितनी है, 14,400। He has not considered this. This I have to check. Let's see. दोबारा से पढ़ते हैं। What I did earlier, I thought that this 72,000 is the book value for 2/3. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो रिमेनिंग की आपको बुक वैल्यू दे दे तो आप उसकी ग्रॉस वैल्यू निकालो। लेकिन उसने क्या बोला, ओवरऑल मशीन आपके पास 72,000 की थी, जिसमें से 1/3 ले गया। अब और करके देखो, 72,000 का 1/3 यहां से भी पता चल जाएगा कितना, 24,000। मीन्स 24,000 वाली चीज रोहित 30 में लेके गया, 6,000 तो ये बेनिफिट है, ठीक है। अब इसमें से 24 माइनस करूंगी तो बाकी वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस करो, बाकी 48
48 वाली चीज कितने में बिकी? 57,600 में। तो डिफरेंस निकालो, जैसे मर्जी कर लो। 72,000 का 1/3 इज बीइंग टेकन बाय रोहित। उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी थी? 24,000। 24,000 को वो कितने में लेके गया? 30,000 में। 6,000 का बेनिफिट यहाँ पे, बाकी बेनिफिट इसके में से निकालो, कितना बनेगा? 9600। 9600 ही बनेगा। 9600 प्लस यहाँ पे कितना बना? 6,000, तो भी 15,600 ही आ रहा है। जैसे मर्जी कर लो, दिस इज द वे यू अप्लाई योर माइंड, राइट? सो आर वैल्यू ऑफ द मशीन बीइंग इंक्रीज्ड। Yes, students, I am repeating. In between, my mic was on mute mode. So I am repeating. Whenever any of the partners pays firm's expenditure on firm's behalf, we just make that partner as our liability. So it will be revaluation account debited to partners capital account. आगे चलते हैं. Bad debts recover होगा. अगला कुछ पढ़ो जरा पॉइंट, देखो आपको समझ आता है. Each and every point is new.
We arrived at 11th number. A debtor जिसका अकाउंट 14,000 हमने बैड डेट पिछले साल लिख दिया था, अब वो हमें 10,000 पे कर रहा है। आप सबको +1 में एंट्री करवाई होती है बैड डेट्स रिकवरी की। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैठे बैठाए हमारी इनकम हो गई, उस इनकम को आपने रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है। पहले जितने पैसे मिलते हैं वो लो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, 2 एंट्रीज होंगी भाई इसमें। फिर इस रिकवरी को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज रीवैल्यूएशन इज आवर नॉमिनल अकाउंट, और एसेट से रिलेटेड कोई भी फायदा नुकसान होता है वो रीवैल्यूएशन में जाता है। सो हाउ वी विल ट्रांसफर इट, इस अकाउंट को क्लोज करना। क्या करूं अगली एंट्री में, बैड डेट्स रिकवर्ड को डेबिट करो, ठीक है। अगली एंट्री में बैड डेट्स रिकवर क्या होगा, डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, हो गया ट्रांसफर। कौन सी साइड पे आएगा, रीवैल्यूएशन का जब लेजर अकाउंट बनाऊंगी तो ये कौन सी साइड पे आएगा, बाय वाली साइड पे आएगा, और बाय वाली साइड मेरी क्रेडिट साइड होती है, मींस हमें इनकम हुई। मैं बाय वाली साइड पे लिखूंगी ना, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, यू आर गेटिंग मी। सो फर्स्टली वी आर गेटिंग द मनी व्हिच वी डिक्लेयर्ड बैड डेट ड्यूरिंग लास्ट ईयर, दैट वाज ऑफ 14,000। 14,000 से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। +1 में आपको सिखाया हुआ है जितना रिकवरी हो जाती है ओनली दैट यू वेलकम। सो व्हाटएवर माय डेटर इज गिविंग टू मी दैट ओनली आई विल रिसीव, and we will be transferring it to a newly opened account which we call bad debts recovered, right? So this was the way. आगे चलो 38 पे आओ। yes, let's see 38, पढ़ो 38। Come to 38. Asha and Aditi are partners. Asha is to Aditi are partners. Sharing is 3:2. They admitted Raghav as the new partner for 1/4 share. Raghav अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है 6 लाख। Who will tell me the journal entry for bringing the capital into the business by Raghav? चलो सम्यक बोलो आप। राघव जब अपने हिस्से की 6 लाख कैपिटल लेके आएगा, व्हाट एंट्री विल यू पास, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राघव्स कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। एज द अमाउंट इज इन लाख, तो यू कैन इवन डेबिट बैंक कि वो चेक लेके आएगा क्योंकि लैक्स में अमाउंट है, राइट। बाकी देखते हैं ये कैसे करेगा, आगे चलो। यस, कहता वो अपने हिस्से की गुडविल भी कैश में लेके आ रहा है। जब वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आता है तब क्या एंट्री करते हैं, प्रथम Raghav is bringing his share of goodwill in cash. What entry we pass? Very good. Cash account debited to premium for goodwill. लेकिन सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, गुडविल नहीं दे रखी, कहता गुडविल खुद निकालो। How the goodwill is being calculated? Average profit basis. 2 years purchase of average of 4 years profit. 2 से मल्टीप्लाई करूं, 4 सालों के प्रॉफिट की एवरेज करूं, ऐसे ही करते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है ना, चैप्टर नंबर 3 में किया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म आई एम कैलकुलेटिंग, जितनी फर्म की गुडविल आएगी उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यू विल बी हैविंग द शेयर ऑफ राघव्स गुडविल। ऐड करो जी, 4 6 10 13 20 और डेज 22 50, 22 50 में 70 और ऐड किया, 23 20। देखो जरा वर्किंग नोट्स में, तो वॉट एवर ही इज डूइंग वी विल बी टेकिंग। इसकी एवरेज निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। नीचे वाली एडजस्टमेंट मैंने पढ़ी नहीं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है अपने गुडविल के चैप्टर में। देयर आर सर्टेन एबनॉर्मल केसेस, व्हेनेवर एबनॉर्मल केसेस आर देयर यू नीड टू एडजस्ट योर प्रॉफिट। सो आई हैव द गिवन प्रॉफिट, मैं पूरा टेबल ही बनाऊंगी। 4 years profit I will write 1 2 3 and 4. Here is our profits. He is giving me profits of 4 years. आप लिख लेना, ये 13 14 है, 14 15 15 16 and 16 17. So that are
3,50,000, 4,75,000, 6,70,000, 7,45,000. नीचे पढ़ो जी. The following additional information is given to cover management cost and annual charge of rupees 56250 should be made for the purpose of valuation of goodwill. कहता जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे तो आपने हर साल एनुअल चार्जेस 56,250 माइनस करने हैं. मैनेजमेंट कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है. So from every year's profit, I will be deducting 56,250, 56,250 हो गई माइनस. और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ विच ईयर? Year ended this 17 was overvalued by 15,000. Who will tell me its treatment? अगर किसी साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट बढ़ गया हुआ है, क्योंकि जीपी बढ़ गया तो एनपी भी बढ़ गया. क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने के कारण प्रॉफिट बढ़ गया हुआ है, उसे कम कर दो. कितने से बढ़ गया हुआ है? कितने से बढ़ गया है? 15,000 इस साल माइनस करूंगी. मान लो अगला साल फिर से आता, मान लो आगे 17-18 भी वो देता, तो उस साल ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल ओपनिंग बनता. और ओपनिंग अगर ओवर वैल्यूड होता है तो आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया है? बोलो क्या कर दिया है? कम कर दिया है. तो आपने 15,000 ऐड भी करना. ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर. मान लो ये सेकंड लास्ट ईयर होता तो यही स्टॉक आपको सिखाया हुआ +1 में पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल को ओपनिंग बनता. अगर इस साल ये माइनस हुआ तो अगले साल ये ऐड होना था, अगर वो इसको और एलेबोरेट करता. नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस. सारे डिफरेंस निकालो एंड यू विल बी हैविंग एडजस्टेड प्रॉफिट इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ वी विल बी कॉपिंग फ्रॉम द बुक, राइट. तो पहले साल का प्रॉफिट आपका आ गया 2,93,750. सेम वे यू विल बी कॉपिंग फ्रॉम द बुक. Can't you calculate the value of goodwill on your own now? तो गुडविल की वैल्यू आपकी आ रही है 5 लाख. उसको 2 से एवरेज प्रॉफिट आया 5 लाख, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्म की गुडविल आई 10 लाख. फर्म्स गुडविल इज 10 लाख. मेरे को राघव का शेयर निकालना है. राघव शेयर ऑफ गुडविल 10 लाख इंटू, बोलो कितना शेयर है? 1/4. 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है ये. गुडविल की वैल्यू खुद निकालो और जर्नल एंट्री पास करो. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राघव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. So he is bringing 6 lakh, 2,50,000 he is bringing in cash. What will be the next entry for treatment of goodwill? वो नहीं बोलेगा. आप बताओ अगली एंट्री क्या होगी? Entries is though he has not asked, पर अगली एंट्री क्या होगी? Yes, premium for goodwill account debited to sacrificing partners in their sacrificing ratio, and the sacrificing partners are Asha and Aditi. Nothing is mentioned about their new profit sharing ratio, so their sacrificing ratio will be equal to their old ratio. ठीक है. 2,50,000 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर देंगे. दो ही हैज नॉट आस्क्ड इट, बट दैट स्टेप शुड बी फेड इन योर माइंड परमानेंटली, राइट. सेकेंड एंट्री याद हो गई? आप बोलो बेटे. व्हाट्स योर नेम? सृष्टि. बोलो आप. व्हाट विल बी द सेकेंड एंट्री? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल in their sacrificing ratio, right? In the next period also we will do accounts. In 4th period, I have to complete this.